Good morning, student. We have done summary and question answer of chapter first, the summer of beautiful white horse. Today we are going to complete our remaining question answer. Our first question for today is that who visited Am's house that afternoon? आफ्टर आम रोड द हॉर्स, यानी कि जब आम ने घोड़े की सवारी की थी तो उसके बाद उस दोपहर को आर्म के घर पर कौन आया था? John Byro, a farmer, as we have read in the chapter, came into his house and he made a complaint to his parents that his beautiful white horse had been stolen, and he was in a great trouble because he had a surrey and there was no use of it without a horse, and he had to walk a long distance to come there. And his uncle Khusrau, Am's uncle Khusrau, shouted on John Byro that it is no harm, pay no attention to it. John Byro, a farmer, visited Am's house that afternoon after Am rode the horse. He complained that his beautiful white horse, which was stolen, had last month was still gone. उसने क्या कहा कि जो पिछले महीने उसका खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा चोरी हो गया था वो अभी तक भी नहीं मिला है. Arm realized that it was the same horse which they hid in the house of a in the barn of a vineyard. मतलब जब जॉन बायरो ने बात बताई तो आम को उस वक्त रियलाइज हुआ कि शायद ये वही घोड़ा है जिसे उन्होंने उस मतलब अंगूरों के जो बगीचा था उसके उस खलिहान में उन्होंने छिपा रखा था. इसलिए ही पैनिक्ड एंड ran to Murad. There he narrated the whole incident to him. इसीलिए वो डर गया, पैनिक्ड यानी कि डर गया और वो मुराद के पास भाग कर गया और उसने नरेटर से कहा कि उसको पूरी बात बताई कि जॉन बायरो आज हमारे घर आया था और उसने उसे वहाँ पर क्या क्या कहा. उसने मुराद को पूरी बात बताई. आल्सो अर्न वाज सरप्राइज टू हियर दैट मुराद वाज enjoying horse riding from last month. Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? क्या लड़कों ने घोड़ा इसलिए वापस कर दिया था क्योंकि उनकी अंतरात्मा जाग गई थी या वो डरे हुए थे? The boys returned the horse to John Byro not because they were afraid but because they were conscience stricken. When John Byro saw the two boys with the white horse, he recognized his horse but refused to believe that Murad and Am had stolen it. According to him, the fame of their familiar honesty was widely known. This was the reason that the conscience-stricken boys decided to return the horse. मतलब लड़कों ने जो था वो इसलिए क्योंकि they belonged to a tribe, the Hungarian tribe, and their tribe was famous for the honesty and truth. And John Byro didn't suspect them for stealing the horse because he was well known for the fame of their tribe, and he couldn't think that they could stall a white horse for enjoying horse riding. And that's why when they came to know that John Byro was the real owner of this horse, they returned the horse because they didn't want to defame their tribe विद देयर एक्ट, क्योंकि वो अपने एक्ट से अपने ट्राइब को डिफेम नहीं करना चाहते थे, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं लगाना चाहते थे. तो इसीलिए उन्होंने अपनी कॉन्साइज स्ट्राइकन की वजह से उस घोड़े को वापस कर दिया. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Who said these words and why? एक शक्की आदमी ही अपनी आंखों पर भरोसा करेगा अपने दिल की बजाय. ये वर्ड किसने कहे थे और क्यों कहे थे? ये वर्ड जॉन बायरो ने कहे थे. जब हमने चैप्टर में पढ़ा, जब उसने दोनों लड़कों को उस घोड़े के साथ देखा तो ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द वाइट हॉर्स बिकॉज इट वॉज द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स. क्योंकि उसके हॉर्स का डुप्लीकेट था, इसीलिए उसे बहुत अजीब लग रहा था. तो उसने ये वर्ड कहे थे कि अगर कोई इंसान अपनी आंखों पर, जो शक्की इंसान होगा वो अपनी आंखों पर भरोसा करेगा अब बजाय कि अपने दिल के, क्योंकि वो
उन्हें बहुत अच्छे से जानता था कि दे वर सो ऑनेस्ट दैट दे कुडंट थिंक अबाउट स्टीलिंग, कि वो चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। John Byro the farmer said to the boys when he saw the horse with them. He became very surprised to see the white horse, which was similar to the missing one. But in his heart, he couldn't doubt the integrity and honesty of the boys due to his फेथ ऑन देयर ट्राइब, क्योंकि जॉन बायरो जो फार्मर था उसने ये वर्ड्स उन लड़कों को कहे थे। जब उसने उन लड़कों को उस घोड़े के साथ देखा, वो घोड़े को देखकर बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि ये गुम हुए घोड़े का बिल्कुल सिमिलर कॉपी थी। लेकिन उसके अपने दिल के अंदर वो इस बात के बारे में डाउट ही नहीं कर सकता था कि उनकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी पर कोई शक किया जा सकता था, या उनके बारे में हल्का सा भी उसे कहीं पर भी कोई डाउट क्रिएट हुआ उसके माइंड में, क्योंकि वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते थे जो उसकी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। एज ही वॉज नॉट सस्पिशियस अबाउट द बॉयज स्टीलिंग हिज हॉर्स, ही डिडंट बिलीव हिज आइज एंड ही सेड टू दिस वर्ड्स, क्योंकि उसने उन लड़कों पर शक नहीं किया था कि वो लड़के चोरी कर सकते हैं। इसीलिए उसे इस बात के बारे में पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट था कि वो लड़के चोरी नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसने अपनी आंखों पे भरोसा नहीं किया, बल्कि उसने अपने दिल पर भरोसा किया। What request did the narrator make to his cousin Murad about the horse? How did he react to it and what does दिस रिवील, मतलब नरेटर ने अपने कजन मुराद से क्या रिक्वेस्ट की घोड़े के बारे में, उसने कैसे रिएक्ट किया और इससे क्या पता चलता है। द नरेटर रिक्वेस्टेड हिज कजन मुराद नॉट टू रिटर्न द हॉर्स टू फार्मर, उसने नरेटर ने अपने कजन मुराद से रिक्वेस्ट की कि वो घोड़ा जॉन बायरो को या फार्मर को वापस ना करे, बिकॉज ही वॉज आल्सो फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग एंड ही वांटेड टू लर्न इट, वो इसे सीखना चाहता था क्योंकि उसे बहुत ये चीज़ पसंद थी, कि वो मतलब उसे घुड़सवारी बहुत पसंद थी जॉन बायरो। टिल ही लर्न टू राइड हाउ ऑब्वियस दैट इट माइट टेक हिम ए ईयर, मुराद snorted that he was inciting him to steal. He declared that the horse must go back to its true owner. This shows his honesty and sense of family pride. मतलब उसने कहा कि जब तक मैं सीख ना लूँ तब तक तुम इसे वापस नहीं करोगे। लेकिन मुराद ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि नहीं, वो इसे बहुत टाइम लगाएगा, इसके लिए वो 1 महीना भी लगा सकता है। और उसने कहा कि तुम इस तरह से मुझे चोरी करने के लिए उकसा रहे हो, लेकिन ये घोड़ा इसके मालिक के पास ही जाना चाहिए। तो ये दिखाता है हमें कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ऑनेस्टी थी और फैमिली प्राइड को वो बचाना चाहता था। व्हाट डू यू थिंक इंड्यूस द बॉयज टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ऑनर, आपको क्या लगता है कि भाई लड़कों ने क्यों इस घोड़े को उसके ऑनर को वापस किया था। बॉयज वर इम्प्रेस्ड बाय जॉन बायरोज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड फैमिली, जो लड़के थे वो इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे जब जॉन बायरो ने कहा कि आई कुडंट थिंक दैट योर ट्राइब कैन डू सच टाइप ऑफ द एक्ट एज स्टीलिंग, की जैसे चोरी जैसा कोई काम तुम्हारा ट्राइब कर सकता है, तो मैं इस बात के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। He know their parents very well and so believed whatever the boys said. Secondly, the fame of their family for honesty was well known to them. The boys returned the horse to him for the sake of family pride and dignity. हालांकि जो पहली बात तो जॉन बायरो उनके ऊपर फेथ करता था, दूसरी उनका जो फैमिली थी, जो ट्राइब था, वो ऑनेस्टी के लिए जाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने उस घोड़े को वापस कर दिया, क्योंकि वो अपनी फैमिली के प्राइड को और अपनी फैमिली की डिग्निटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। सो द बॉयज राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक and send for checking. You are not serious about your work. All the students are not sending their work, so please complete your work and make it sure that you are sending it to me for checking. Thank you. Have a nice day.